So I welcome you all. This is your first lab with me for the computer programming. I hope all of you are from COE 19 group, right? So this Yes, is COE 19 group. yes, sir. Okay. So first of all, I want to introduce myself. Give me 1 second. I want to open my notebook. Okay. Sharing the screen. So my name is Dr. Sahil Sharma. I will be teaching you C programming lab, and in this lab we will be covering all the things that will be taught to you in the class. So we will be doing all those things practically. So I want to ask you from people, first of all, how much have you been taught in the class? Can you name some topics so that I can discuss them? Anji? Well, we haven't really done much. We just did the print F hello world one. Okay, so you have done this thing, hash include stdio.h, Yes, sir. Yes, sir. and you have also covered this thing int main and printf. So within this it was written hello world. So this one you have already seen in class. And did they tell you that why do we write here return 0 in the end? Anyone? No, sir. No, they did not tell you. Okay, so who is teaching you theory class? Rohit, sir. Okay, Rohit sir. Okay, so I will be taking your lab. So let's discuss this thing in detail. I will be covering all the things in this C program. This is the structure of C program. In the structure of C program, we will include the libraries. So whichever pre-processing libraries we require. So this is a pre-processing library. This has already been defined on the backend, and this stdio.h has a full form. Can anyone tell me the full form? Standard input output. Yes, it is standard input output. And what is the function of it? What's the function of standard input output library? So this is a header file, right? So this is header file, and header file is kind of a library in C program, C programming. And when we install the C programming software on our PC, let's say you will be installing Dev C++, you can install this. This is available online. If you do simple Google search, it is available freely on SourceForge website, sourceforge.net, I guess. So you can search about this. There is a 48 MB setup which is easily installable on your Windows 10. And if you have a Mac PC, I don't know the details of software for Mac, but I have one solution for it. I will come to that online compiler. You can use online compiler in case you are using Mac. But when we install this software, when we install this Dev C++, on the backend, this stdio.h is there. There is a program called stdio.h on the backend, and within that stdio.h, there are multiple things available. One of them is printf. Printf is already written. All the coding has been done on the backend within this program. Similarly, scanf is also available within this program, and everything can be taken from there. There are other functions also. Let's say getchar. I will come to this thing, that what does this mean. We will use also putchar. So there are few things that are predefined in just stdio.h. So if you want to use printf in your coding, let's say at this instance we are using printf. So for printf we need stdio.h to be prefetched. Okay, so this library we need to include
and then only we can use printf. If you use printf without stdio.h, then it will be error. Anyone any doubt till now? If you have any other doubt, or maybe if you want to ask anything else till now from the topics I have discussed till now, you can ask. So it will be better if you can participate more. Okay, so if you have any doubt, you can freely ask me. For a simple reason, class में तो बहुत जने होते हैं, right? And you cannot expect a teacher to handle all your doubts. You people are maybe 100 or maybe 120 people in your class, so a teacher cannot handle all the doubts. But in lab हम बहुत कम जने हैं, we are very less people, and I want you people to be very relaxed, and you can ask me anything, whatever is being taught in the programming. And let's come to this return zero. I will also explain this part if this is not been covered in class. So when we say we want to use this function int main, first of all, int main is the first function that is found that is being found by the compiler when we run a C program. Let's say my C program name is hello.c. So there is this .c extension that is being used, that has to be used. If you do not save your file with a .c extension, it will not be compiled as a C program. So .c is a extension for C programming. It is extension for C program to be saved. Okay, so you have to compulsorily use .c in the name. And when we say that we want to run this program, our compiler will first find the main function. So main function has this round bracket with it, and round bracket is a symbol that this is a function. So if tomorrow we use some function, so if I write this thing sum with this round bracket, it means that sum is a function here. Okay, sum is a function. Similarly, my main is a function. So if I use round brackets, it means that it is a function. Similarly, if I use printf, and printf also has these brackets, this printf is also a function. So there are multiple functions that are being used that you are already using. Main function and printf function you have already used in class, but now I will also explain more about it. But before that, I also want to highlight this thing. Can anyone tell me that what is the function of this uh, curly bracket? कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, जल्दी से बताओ एनीवन. Sir, it tells that it's a function. इट्स ए फंक्शन तो राउंड ब्रैकेट बताता है ना यार. राउंड ब्रैकेट है जो ये वाला ब्रैकेट है, ये बताता है हमें फंक्शन है. बट कर्ली ब्रैकेट कुछ और बताता है. कर्ली ब्रैकेट क्या बताता है वो पूछ रहा हूँ. कर्ली ब्रैकेट अलग होता है, राउंड ब्रैकेट अलग होता है. Sir, it encloses the body of the function. Yes, exactly. जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, when I'm making main function, obviously I have to tell कि मेरी लिमिट क्या है. I start from here, I go till here. तो जितना भी चीज मेरे इस कोड के अंदर होगा, जितना ये बाउंड्री के अंदर होगा, इसको हम एक्चुअली ब्लॉक कहते हैं. Within this block, whatever I write, this all these statements will be part of this function. ठीक है. एंड सिमिलरली इफ आई राइट सम फंक्शन, तो अगर मैं सपोज सम ऑफ टू नंबर्स बनाना चाहता हूँ, देन अगेन आई हैव टू डिफाइन द बाउंड्री विद दिस कर्ली ब्रैकेट, एंड दिस बाउंड्री इज कॉल्ड द ब्लॉक. Again, this block has few statements. All of those statements are part of this function defined by this block. ये बाउंड्री सेट कर देता है हमारे लिए. ठीक है, एक बाउंड्री सेट करने का तरीका है, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस कर्ली ब्रैकेट्स. और क्या है इसमें, ये हैश के ऊपर हम बाद में आएंगे. हैश मींस वी वांट टू डू सम in we want to include few things, and for that, for all those libraries to be included, we have to use hash in front of it. int, अब int पे आते हैं. अब int और return zero की बात करते हैं. अब देखो, let's say I want to do sum of two numbers. तो अगर मैं sum of two numbers करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, int main, मैं दो वेरिएबल लूंगा, int a और b. उन दोनों को कुछ वैल्यू दूंगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3. ठीक है, एंड आई वांट टू प्रिंट द सम. सो printf sum is %d a plus b in bracket. मैं ऐसा करके कर दूंगा. एक यहाँ पे चीज रह गई है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न जीरो. तो रिटर्न जीरो भी लिख लेते हैं. वांट टू एक्सप्लेन दिस आल्सो.
Can anyone explain me what is being done in this program line by line? This is line number 1, line number 2, line number 3, line number 4. Line number 1 में क्या हो रहा है? Can anyone tell? So we are defining the variables. A and B. Tells that A and B are integers. A और B are integers, yes, and also we are declaring them. अब यहाँ पे किसी ने शायद defining बोला है. This is not defining, this is just declaration. इसको हम declaration बोलते हैं. जब तक मैं अपने variable को कोई number नहीं दे देता, जब तक हमने सिर्फ एक intention बताया है that I will और I might use A and B आगे जाके. ऐसा भी हो सकता था कि मैं B use ही ना करता, ठीक है, मैं B use ना करता, but मैं यहाँ पे A+3 directly लिख देता. तब भी सम तो वो कर ही देता A+3 करके, वो इसको यहाँ पे भेज देता और वो प्रिंट करवा देता. तो बी आगे जाके मैं यूज करूँ ना करूँ, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हाँ मैं यूज करूंगा, एक इंटेंशन बताई है. व्हेन वी आर गिविंग दिस इंट a, b, वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग देम कि मैं a और b आगे जाके यूज कर सकता हूँ. ठीक है जी. रिमूविंग फ्यू थिंग्स. तो डिक्लेरेशन कर रहे हैं हम. a और b हमने डिक्लेयर करा है. जब मैंने उसको वैल्यू दी a = 2, b = 3, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन. अब मैंने इसको डिफाइन किया है. आई हैव गिवन देम सम नंबर्स, आई हैव डिफाइंड देम, एंड एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट उसको एक और चीज मिलेगी, दैट्स कॉल्ड स्पेस इन द रैम. अब देखो यार, मतलब वी आर यूजिंग a = 2, वी आर यूजिंग b = 3, बट देन it is being stored on the back end somewhere, right? And when I say a = 2, it means that a को एक लोकेशन मिली है रैम के अंदर, ठीक है, जहां पे उसने अपना नंबर सेव किया है 2. जब उसको ये लोकेशन मिल जाएगी, इट मींस वी हैव डिफाइंड इट. जब उसको b को लोकेशन मिल जाएगी, लेट्स से 3, then we have defined it. Till it does not get the location within RAM, it is not defined, it is just declared. डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन? वन मोर थिंग, very small thing. How many bits are there in 1 byte? 8. 8. Yes, good. अब ऐसे ही चलते हैं. 1 KB, 1 MB, 1 GB, TB. इससे आगे क्या होता है anyone? It's PB, petabyte. टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट्स. दिस इज पेटाबाइट. ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज टेराबाइट. और ये सब कितने होते हैं? तो 1 KB is equal to how many bytes? 1024. Yes, this can also be written as 2^10. अगर आप 2^10 करोगे, 2 into 2 into 2 10 times, it is equal to 1024. Now it's easy. This will be KB 2^10, 2^10. MB is equal to 1 GB, 2^10. GB equal to 1 TB, 2^10. TB equal to 1 PB. So all these things I wanted to highlight because I wanted to tell you that when I say I am using int, अब ये int RAM में कितनी जगह लेगा? That's equal to 4 bytes only. My integer size is 4 bytes. बहुत छोटा होता है एक integer, ठीक है? And we have seen that there are lots and lots of different sizes, and especially in our laptops, generally we have 1 terabyte of hard disk. So when we run a program, we are dealing with very small memory size, ठीक है? Similarly, ऐसे ही एक char होता है character which is equal to 1 byte in size, ठीक है? And there is float. Now I'm coming to coding in within 1 or 2 minutes. I just wanted to give you these basic stuff. Now what we have covered till now is we have seen the structure of program, and we have also seen that extension .c hota hai, we have to save it with .c extension. We have seen stdio क्यों use करते हैं. We have seen brackets का क्या मतलब है, right? And we have also seen declaration definition. One thing is still left, which is called return equal to 0, return 0. अब return 0 का मतलब ये है, I am telling you, थोड़ा ध्यान से सुनना. int is my return type of main. ठीक है, जब मैं कोई भी फंक्शन है, अब ये फंक्शन का नाम है,
ठीक है जी, ये वाला फंक्शन का नाम है। फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा। रिटर्न टाइप यहाँ पे है int, that I want at the end of my program, at the end of my function, it should return a integer. अब यहाँ पे रिटर्न 0 है। अब लेकिन ये 0 भेज कहाँ रहा है, रिटर्न कहाँ पे हो रहा है? रिटर्न वहां होगा जहां से ये फंक्शन कॉल होगा। एक फंक्शन कॉल नाम की चीज होती है, यू विल लर्न दैट इन योर चैप्टर ऑफ फंक्शंस, इट विल कम लेटर ऑन। बट एक बेसिक से आइडिया देने के लिए आई एम सेइंग, if I am writing int main and I am doing some stuff where I am doing some what we say statements, I am running them, and in the end I am saying return 0. तो यहाँ पे मतलब ये है that when I run this program, after this program completes, it has to return 0. अब ये program run कौन कर रहा है? Can anyone tell me? Where is this program being called for running? Compiler is running it. ठीक है, अब कंपाइलर कहाँ पे रन हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वी हैव इंस्टॉल्ड सम कंपाइलर ऑन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। even if you are using a online compiler, it is still running on some operating system, that software online। ठीक है, तो वो जो कंपाइलर है या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न 0 इज ए व्हाट वी से टेक्निक ऑफ द प्रोग्राम कि हम एज वी यूज कंपाइलर, कंपाइलर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल दे रहा है, सिग्नल दे रहा है 0 का, विच इज द वैल्यू of successful completion। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? that when we are returning 0 at the end of the program, it is kind of a symbol for the operating system। हम कह रहे हैं एज ए कंपाइलर के भाई मेरा काम हो गया, I have done my work successfully, you can take back your resources। now everyone knows that whenever we run some software, that software will use some amount of RAM, right? अगर आप अपने लैपटॉप के टास्क मैनेजर में जाओगे, अगर आप देव C++ रन कर रहे हो, you will see that देव C++ might be it is using 400 MB of RAM, and within that 400 MB some amount of space is being used for that particular program। यहाँ पे हमने जो int किया था वगैरह वगैरह, हमने बहुत सारे काम ऊपर जो भी करे होंगे वो सारे यहाँ RAM में यूज हुए, ये सारी लोकेशन पे सारा वो काम हुआ। बट देन इन द एंड व्हेन आई सेड रिटर्न 0, इट मींस दैट आई डू नॉट वांट टू यूज द स्पेस एंड यू कैन यूज द स्पेस फॉर समथिंग एल्स। तो ये 400 MB माइट बिकम 100 MB, तो वो कम हो जाएगा। इट मे बी द केस के वो 300 MB एक्स्ट्रा यूज कर रहा था फॉर गेटिंग द वर्क डन, बट व्हेन आई सेड रिटर्न 0, आई हैव गिवन द सिग्नल टू माय ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मींस के भाई तुम मेरे से रिसोर्स वापस ले लो। एंड ऑब्वियसली वो देव C++ जितना रन होने के लिए चाहिए होगा उसको मे बी 100 MB वो यूज करता रहेगा, बट बाकी का 300 MB वो फ्री कर देगा फॉर अदर फंक्शंस टू रन। लेट्स से आपने बैकएंड पे गूगल क्रोम खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, जूम खोला है, फॉर ऑल दो सॉफ्टवेयर्स उनके लिए वो 300 MB एक्स्ट्रा बच जाएगा। इज दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर कि हम रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. If you have any doubt, you can ask. Now, coming to this assignment that we need to cover and we should focus on in this lab. So this is your assignment 1, and this assignment 1 should be covered based on our knowledge by the end of this class. ठीक है, whatever I am teaching you today, I will make you knowledgeable enough कि आप ये सारे प्रोग्राम खुद कर पाओ। ठीक है, and for that I want to start discussing few things. Let me open the online compiler first. I will write online C compiler. I will open the first link. It is onlinegdb.com. You can also open the same. ठीक है, if you open this online C compiler link, you will be taken to this page where it is by default written that printf hello world return 0 hash include this. So all of these things are available by default here. And I hope सबको ये पता है, if I click on run now, hello world will be printed as the output. Is this clear to everyone कि ये program कर क्या रहा था? We have already discussed. Yes, sir. And that's what is being told you to do in the first program. ठीक है, and similarly if I say that you have to input an integer, now whenever we say that we want to do the input करना है value, इंटीजर का करना है या डेसिमल नंबर मतलब फ्लोट नंबर जिसमें पॉइंट्स आते हो, ठीक है, या फ्रैक्शन करना है या फिर आपको कोई कैरेक्टर इनपुट करना है, व्हेन वी से इनपुट
then we are talking about the scanf. अब let's say मैं पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ sum का, scanf पे बाद में आएंगे. Before that, I also want to highlight one thing. Can anyone tell me that what is this thing? Is this part of code? No, sir. No. What is this then? Sir, a Comment. comment. Sir, it more like a comment. Yes, yes. Now, I want to tell you that if I write double slash, this means single line comment. I would say that this is a standard input output header file. ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, I can use double slash. This is a single line comment. ठीक है जी, this is single line comment. ठीक है, एंड इफ आई वांट टू राइट ए मल्टीपल लाइन कमेंट, अब ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, इसने 6-7 लाइनें ले ली हैं टू जस्ट राइट दिस कमेंट इतना बड़ा. To do this, you have to do one thing, just one thing, which is you have to start with slash and then a star with it. स्लैश और स्टार डालोगे, इसी सीक्वेंस में डालना पड़ेगा, पहले स्लैश आएगा फिर स्टार आएगा. इट मीन्स कि मेरा एक मल्टीपल लाइन का कमेंट शुरू कर दिया जाए. एंड if I don't end this thing, it will convert my full program into a comment. अब यहाँ पे देखो सारा कलर ये ब्राउन हो गया है. Everything is a comment now. But now I want to finish this comment. मुझे नहीं चाहिए कि यार मतलब ये वाली चीज मेरे नीचे वाले प्रोग्राम को कोई इफेक्ट कर रही है. तो I have to end this. I have to write a star and then a slash. तो इतना करने पे मैंने मल्टीपल लाइन का कमेंट यहाँ पे लिख दिया. फर्स्ट 9 लाइंस आर माय मल्टीपल कमेंट ओनली. स्टार्ट करना है स्लैश स्टार से, खत्म करना है स्टार स्लैश से, and then all of this is multiple line comment. Now if I want to write here that I want to make sum of two programs, sum of two numbers, I want to do sum where a is equal to maybe 10 and b is equal to 30. I want to print the sum in C. C is the sum, and you have to make this program. ठीक है, C is the sum. Now what to do? अब यहाँ पे first of all we need two variables. This is a variable, right? This is variable. A is a variable, B is a variable, C is a variable. And I can see इसमें कोई point नहीं है, मतलब ऐसे 30.5 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 30 है. इसका मतलब बिना point वाले ये सारे integer होते हैं. तो यहाँ पे what I can do is int A equal to 10, B equal to 30. तो मैंने इतना कर दिया कि मेरा A में 10 आ जाए और B में 30 आ जाए. अब इस टाइम पे because I am declaring as well as giving the value to it, तो मैंने एक ही बार में उसको वैल्यू दे दी. ठीक है, it means that in this statement this is directly the definition. यहाँ पे declaration अलग से नहीं हुआ, declaration और definition इकट्ठा combine कर दिया गया. ठीक है, so here we have defined A and B with their corresponding values. ठीक है जी. Now I have got the value of A and B. Now, because I have to save the value in I don't know what happened. So is my screen visible again? Yes, sir. Okay. So now I want to do the sum. Int C equal to A plus B. Simple. ठीक है जी. So sum is in C. Now I just want to print it. Printf the sum is colon %d. I am coming to this %d in a minute. C. चलो जी खत्म. Now if I run this program, you will see that the sum is 40 is being printed successfully. ठीक है, अब यहाँ पे with exit code 0 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है that my implementation is running successfully. Now अगर मैं यहाँ पे return 0 ना भी लिखता, अगर मैं इसको ही हटा दूं यहाँ से and then I run this program, you will notice that it is still giving exit code 0, which is a good thing. This compiler is a advanced compiler. It is not being dependent on me to write return 0. It is giving the successful completion, but it is a good practice if you write return 0 also. Now can anyone explain me why I have written this %d here? Why I have written this %d here?
quickly, anyone? Sir, so you could that person B would be the variable C would be replaced by variable C there when the output is given. Yes, good. So what's being done is, देखो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, हमने इनिशियली लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड के टाइम पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि %d कर रहे हैं जी, कुछ कर रहे हैं। तो printf क्या कर रहा था, वो उसको एज इट इज प्रिंट मार रहा था हेलो वर्ल्ड को। बट नाउ still printf is printing everything inside the quotes, but now it is also expecting here %d printf को पता है internally within this printf function, it is already predefined that %d means integer. It is expecting a guest which is an integer, so c will take its place and c will fill this value, and the output will be the sum is space colon space 30। तो ऐसे करके हमने अभी देखा था, this was the output, ठीक है जी। so that's the main motive behind this %d। now if I want to work with the what we say float number, let's say I want to add 10.5 and 30.5, so these are two float numbers, simply I have to convert this into float, because float की ये duty है that it has to take care of these numbers of having decimal places, so 10.5 and 30.5 will be saved as a float number, ठीक है। now if I run this program, what will be the output? हाँ जी बताओ Sir, जी। it will raise an error. It will raise an error. Sir, the sum is still an integer, so it will run. It will run. What should be the output? It will be 40, it should be 41, it should give a error. What it will be? 41. 41, 40. 40 or 41? Quickly. 40. Okay, let's run it. It's 41. What's being happening here? Let's copy this code and make let me take it to Dev C++. Give me 1 second. Let's confirm if it is compiler based or it is fine. So what I'm doing is I'm writing two float numbers, I'm adding them and I'm keeping the sum as a integer, ठीक है जी। C में सेव कर रहा हूँ और मैं उसको sum को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं अब इसको रन करूंगा, before that I want to save it, and for saving it I will write sum.c। just take care, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, I think शायद sum वाली चीज तो दिख रही है, sum.c। you have to do the C source files as save as type, save it। now this is my program, ठीक है। ये sum हो गया save। 1 second। now if I run this, compile and run, the sum is still 41। can you see? इसका मतलब क्या हो रहा है बैकएंड पे? I just wanted to confirm कि ये compiler based नहीं है, it's just that 1 second। now coming to this compiler back, यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब भी कर सकते हो। so what's being done here is the sum is being done here, a plus b हो रहा है, and because a plus b होने के बाद वो 41 बन रहा है, वो 41 point something अगर कुछ होता भी तो भी वो 41 ही उठाता, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 41 मिला and it is saving 41 and that it is printing 41। let's do one small change here। what I will do is I will convert this 10.5 and इसको 30.6 कर लेते हैं। तो 30.6 का और 10.5 का sum should be 41.1 but the output will be still 41। देखो अब यहाँ पे output is still 41, ठीक है। output still 41, यहाँ पे 41.1 आना चाहिए था। and अब हो क्या रहा है, यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया that इतना क्लियर हो गया कि सम तो वो कर लेगा, सम नॉर्मल चलेगा चाहे फ्लोट का है या इंटीजर का है, बट देन व्हेन इट विल बी सेव्ड इनटू माय सी देन इट विल बी ट्रंकेटेड अगर वो इंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे फ्लोट कर देता, लेट्स से मैंने इसको फ्लोट कर दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? 41.1. 41.1 देखते हैं एरर ना आ जाए। ये तो एरर आ गया यार, क्यों आया? %f.
इट शुड बी परसेंट एफ। यहाँ पे परसेंट डी डाला हमने, वो कह रहा है कि जो मेरा सी है, देखो कितना अच्छे से इसने एरर बताया है। इट इज सेइंग दैट सी इज योर डबल नंबर। डबल एंड फ्लोट एक ही बात होती है, जस्ट डबल का थोड़ा रेंज ज्यादा होता है, वो पॉइंट्स में डील करते हैं दोनों। नाउ परसेंट डी is for int, but it should be percent f if you want to send a c value which is a double or a float. Now if I have to print the value of 41.1, I have to convert it into percent f and then it will print. Now what will be the exact output? Can anyone tell me? Exact output बताओ। 41.1. आप कह रहे हो 41.1, कोई और आउटपुट आती हो तो बताओ। टेक केयर ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑल्सो, जो पॉइंट के बाद कितने आएंगे वो भी थोड़ा सा एग्जैक्ट बताओ कि टू डेसिमल प्लेस तक आएगा, 3 तक आएगा, 1 तक आएगा, इंक्लूडिंग दैट 6 व्हाट तक शुड बी। आएगा। 6 तक आएगा, गुड। So it will be 41.1 and then 5 zeros will be there. Let me run this and show it to you. So instead of 1000 उसने क्या करा, 099998 कर दिया। बट स्टिल यहाँ से हमें इतना तो क्लियर हो गया दैट इट इज टेकिंग 6 डिजिट्स, ठीक है, वो 6 डिजिट तक जा रहा है। नाउ इफ आई डोंट वांट 6 decimal places, I want only 2 decimal places, what should I do? Anyone? Sir, 6 में 6 क्यों आ रहा है? बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग में 6 का ही लोकेशन आता है इसका ना, जो हमारा फ्लोटिंग वाला नंबर होता है, बाय डिफॉल्ट वो 6 decimal places तक जाता है, इसलिए 6 आ रहा है। Okay, sir. अब इसको चेंज करना है, अगर मुझे इसको 2 तक ही लेके जाना है, बाकी 4 नहीं करने, तो मैं क्या करूंगा, परसेंट एफ को मैं लिख दूंगा %.2f, ठीक है। %.2f लिखूंगा तो वो 6 तक नहीं जाएगा, वो सिर्फ 2 तक ही जाएगा, 2 decimal places तक, ठीक है। तो इफ आई रन दिस नाउ इट विल बी 41.10, ठीक है जी। एनी डाउट इन दिस? अभी पूछ सकते हो अगर कुछ है डाउट। सर हम फ्लोट a, b इज इक्वल टू 10.5, 30.6 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो पाइथन में कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर जो हमने स्टार्टिंग में इंट में लिखा है, तो फिर फ्लोट के लिए फ्लोट में तो नहीं लिखना? नहीं, देखो मैंने ये पहले बताया था, जो मेरा int main है, int main is because we want my main to have the return type of integer and we are returning a integer only. अंदर आप फ्लोट करो, करेक्टर करो, जो मर्जी खेलते जाओ, बट इन द एंड यू आर रिटर्निंग वन इंटीजर वैल्यू विच इज 0 इन द एंड, और ये 0 है, थीटा नहीं है। इन द लास्ट लैब समवन वाज सेइंग दिस इज थीटा, दिस इज 0 ओनली। सिमिलरली यहाँ पे भी 10.5 था तो ये 0 था, तो इट्स लाइक दिस, बट वी आर रिटर्निंग ओनली 0। सो दिस इज इंटीजर, वी आर रिटर्निंग दिस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम के तुम अपने रिसोर्सेज वापस ले सकते हो, हैव डन द सक्सेसफुल कंप्लीशन। यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट कोड इज 0, इट मींस इट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट नहीं आएगा, इंट मेन ही आएगा। देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर। यहाँ पे अगर आप इंट मेन की बजाय इफ यू राइट वॉइड मेन, अब क्या होगा एनीवन? वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, इंटीजर नहीं आएगा। हाँ जी, फिर हमें रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं है। रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करूंगा, माई आउटपुट इज स्टिल दिस, एग्जिट कोड इज स्टिल 0 क्योंकि वो इंटेलिजेंट कंपाइलर है, और हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के पंगा नहीं लिया, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे वॉइड लिखा, हमने बोला कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, पर मैंने गलती से यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया, तो अब देखना यहाँ पे एरर आएगा नीचे। देखो उसने आउटपुट तो दे दिया, बट वो कह रहा है कि भाई तुम रिटर्न मार रहे हो और बोल रहे हो वॉइड, तो थोड़ा सा इसको संभालो, वॉइड बोल के रिटर्न तो मत करो यार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिटर्न नहीं आएगा व्हेन आई एम यूजिंग वॉइड मेन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि अगर उसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो रिटर्न 0 नहीं आएगा, अगर इंट मेन लिखा है तभी वो रिटर्न 0 लिखने का फायदा है। एनी अदर डाउट टिल नाउ? सर फ्लोट एंड डबल में डिफरेंस क्या है? वी विल कम टू दैट लेटर ऑन, अभी सिर्फ फ्लोट पे काम करते हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट लैब मे बी आई विल कवर दैट। अभी उसका थोड़ा सा क्लास में भी लेक्चर होने दो, जहाँ पे आपको डबल का, लॉन्ग इंटीजर, वो सब कवर होगा। लॉन्ग इंट एक होता है, एक डबल होता है, एक लॉन्ग डबल होता है, तो वो सब आपको क्लास में एक बार करवा दें, फिर मैं उस पर जाऊँगा। अभी के लिए फ्लोट के साथ ही चलते हैं। कुछ और है तो बताओ। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई सबको कि अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट्स को कम ज़्यादा करना तो मैं 0.2f 0.3f कर सकता हूँ,
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 0.0f लिख दूं फिर क्या आएगा? बट विल बी द आउटपुट। इंटीजर। नहीं देखो, है तो फ्लोट ही है, मैंने फ्लोट के साथ ही खेल रहा हूँ मैं। सी इज माई फ्लोट एंड आई एम सेइंग %.0f। मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट 6 होता है। 0.0 क्या करेगा? देखो आउटपुट इज 41, तो वो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं दे रहा, सिंपल। चाहे वो फ्लोट था पर उसने ट्रंकेट कर दिया पॉइंट के बाद वाला, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं कि कुछ चाहिए मेरे को। 0.1 करता तो वो 41.1 दे देता, ठीक है। देखो 0.1f है तो 41.1 है। अगर मैं इसको 5 करता तो वो 5 के हिसाब से 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाता, बट मैंने बोला 0, देन इट मीन्स दैट आई डोंट वांट एनीथिंग आफ्टर डॉट, तो 41 सिंपल आ गया, इवन इफ इट वाज ए फ्लोट। समझ में आया जी क्या हो रहा है? सर हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन लिखना होता है। Yes, this is one more thing. Good, you have highlighted this. One more thing to remember here. जितने भी मेरे statements हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा जो ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब मेरा ये इस मेन का पार्ट है, बॉडी है मेन की। तो जितने भी मेरे स्टेटमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 जितने भी आएंगे, उन सब के एंड में सेमीकोलन आना जरूरी है। सर अगर हम रिटर्न के आगे 2 भी लगाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हो कि अगर मैं रिटर्न 0 के बजाय रिटर्न 2 लिख दूं, और ये कह वो, रहे हो ना? हाँ वोट के पहले इंट लगा दो पहले। हाँ, वो नहीं तो एरर आ जाएगा। गुड। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो रिटर्न 2 है। वैसे तो देखो इसने तो नहीं बोला कोई एरर, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आया, बट इफ यू टेक दिस इनटू देव C++, 1 सेकेंड, मूविंग ऑन टू दैट कंपाइलर, मैंने यहाँ पे किया इसको पेस्ट, ठीक है, रिटर्न 2 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। एक चीज दिखानी है यहाँ पे, शेयरिंग द स्क्रीन फुल्ली। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, बट विद रिटर्न वैल्यू 2 यहाँ पे ये देखो रिटर्न वैल्यू 2 शो हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. देखो रिटर्न वैल्यू 2 आ गया यहाँ पे, उसने काम तो कर दिया, बट theoretically if we give a return value of non-zero value, non-zero मतलब जीरो के अलावा कुछ भी, वो चाहे -1 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो -10,000 है, चाहे वो +10,000 है, तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है वो उसको एरर मानता है फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो हम सिग्नल भेज रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक चीज पता है कि अगर 0 आएगा तभी मैं समझूंगा कि तेरा काम खत्म हो गया। इफ इट इज रिटर्निंग एनी अदर वैल्यू, इट मीन्स योर वर्क इज नॉट कंप्लीट, यू आर नॉट हेल्पिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू फ्री इट्स रिसोर्सेस। अगर आप ऐसे कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करोगे तो प्रैक्टिस में 0 ही यूज करा जाता है, तो 0 ही यूज करना चाहिए। तो अगर हम रिटर्न 2 देंगे तो उसमें मेमोरी सेविंग वाला नहीं होगा? हाँ, मतलब वही बात कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प नहीं कर रहे, कि आप सक्सेसफुल कंप्लीशन बता नहीं रहे उसको, ठीक है, तो दैट विल नॉट हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेव द मेमोरी ऑन द बैक एंड। इफ यू वांट सम ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग के आप अपनी कम से कम जगह लो, देन you have to tell the operating system के I have completed my work. Is it clear now? Sir, and एक और चीज, is it important to write all of these in different lines? मतलब हम ये पूरा कोड एक लाइन में लिख सकते हैं? Yes, लिख सकते हैं। Let me show you that. Let's say I am writing this. In fact, because I knew that my C is also float, one thing can be done. Put a comma here, put a C here, and C equal to A plus B, and then you can write this printf in the next line, or maybe you can put that in the same line also. After the semicolon, देखो जब आपने सेमीकोलन ही डाल दिया तब उसको पता चल गया हमारे कंपाइलर को कि ये अगली लाइन शुरू हो गई है। तो अगर मैं अपनी बाकी सारी चीजें सिंगल लाइन में भी कर दूंगा, 1 सेकेंड, ये देखो अब सब कुछ सिंगल लाइन में है। float a equal to 10.5, b equal to 30.6, c equal to a plus b, semicolon means end of statement, printf means अब अगला शुरू हो गया यहाँ तक, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। now if I run this code,
it will still give me the correct answer. ठीक है जी, सिंगल लाइन में भी काम हो जाएगा, बस हम फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर रीडेबिलिटी, वी ट्राई टू राइट स्टेटमेंट्स सेमीकोलन के बाद हम न्यू लाइन डाल के कोड को फिर हम ऐसे देख लेते हैं. हाँ जी, एनी अदर डाउट? No, sir. Okay, so let's come to this thing. Now I want to, let's say, do this nth root of a number. Before that, I also want to do one more thing. I want to teach you one more thing. I want to teach you use of scanf. देखो अब तक हमने क्या किया है, we have given the value of a as 10.5, given the value of b as 30.6, but अब ये तो स्टैटिक हो गया. स्टैटिक का मतलब कि मैं इसको चाहे 1000 बार प्रोग्राम को रन कर लूं, this will consistently give me the answer as 41.1. ठीक है, that answer will not change ever. आप चाहे इसको 1 million टाइम रन कर लो प्रोग्राम को, because you have fixed those two values. Now if I do not want to fix those two values, instead I want to take the value as an input from the user, what I need to do is I need to first declare the variables के मुझे 3 variables की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, now I want to get the input from the user. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं printf लिख के लिख देता हूँ कि please enter the value of a. ठीक है जी, हमने ये लिखा and सेमीकोलन डाल के now I will use scanf. scanf में अब मैं करूंगा %f because I know that my a is a float number and यहाँ पे मैं a लिख दूंगा. अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी है मैंने. गलती ये है कि यहाँ पे जब हम जैसे हमने printf किया तो printf में तो कॉमा के बाद as it is हम उस वेरिएबल को लिख देते हैं. But you have to remember one thing, that when I use scanf, I have to always and always use ampersand with this variable name. तो मेरा यहाँ पे %a आएगा और यहाँ पे printf में सिर्फ c आएगा, because printf के टाइम पे we are just printing the value of the variable whatever it has. But then if I am using scanf का मतलब है that please allocate me some memory in the RAM and store my value there. तो मुझे एक लोकेशन चाहिए रैम में, इसलिए मैं %a लिख रहा हूँ कि मुझे एक जगह दे दो, मेरा एक वहां पे रूम बुक कर दो रैम में, और उस रूम में मैं अपनी वैल्यू रख लूंगा. ठीक है, सिमिलरली इट विल बी सेम फॉर b. ठीक है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ b एंड यू विल डू द सेम. a और b को दोनों को अपना रूम मिल गया रैम में, दे हैव स्टोर्ड देयर वैल्यू. अब जो भी एक यूजर इनपुट देगा, अब scanf है, scanf का मतलब है यूजर इनपुट, वो यूजर को पूछेगा इसका. ठीक है, तो जब भी scanf आएगा, इट इज आस्किंग द यूजर टू गिव 2 वैल्यूज. हियर there are 2 scanfs, and now I can do this thing, c equal to a plus b. You can skip these spaces if you don't want to write them, it will be fine, but just for a better readability I prefer writing spaces in between these things. Answer will not be affected. Now sum will be printed as this thing. जो output आ रहा था, that is not being affected. It's just that I am now taking 2 values a and b from the user, and then I'm helping the user to get the work done. Obviously we can now add different values of a and b. And one more thing, I want to also do one thing. Before this statement I want to write \n. \n means that I want to give a new line every time. I want to print everything in a new line. So whenever this line starts, before doing anything, it will go to a new line. वो एंटर मार के अपने आप अगली लाइन पे चले जाएगा और फिर आउटपुट देगा. तो अब इसको देखते हैं हम रन करके. नाउ सी प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए. तो अब यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है वो फ्लोट नंबर है, तो फ्लोट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ. लेट्स से 3 पॉइंट ऐसे करके मैंने नंबर डाल दिया, 3.325235 ऐसे कुछ करके एंटर मारा. नाउ इट विल आस्क मी द वैल्यू ऑफ बी. नाउ इट कैन बी मे बी दिस थिंग, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, डॉट दिस थिंग. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी. नाउ दीज टू नंबर्स कैन बी एडेड. इफ आई प्रेस एंटर द आउटपुट विल बी 87455 point this thing. So the summation has been done and the output is given by default for up to 6 decimal places. And number jitna bhi bada ho, depending on the range, obviously wo range mein hona chahiye, and we will talk about range. This will be taught in your lectures.
एक रेंज होती है हर वेरिएबल की, जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स का है तो उसकी रेंज है कुछ, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े नंबर भी उसमें डाल सकते हो, तो वो चीज़ आपको करवाई जाएगी। बट द सम इज दिस, सो नाउ वी आर नॉट स्टक विद 41.1, वी कैन गेट any number, any two numbers to be summed, even if they are floating numbers having big or a small number, it should be in range, but it is doing according to the input. So अगर मैं अब दोबारा इसको रन करूंगा, तो दोबारा अगर मैं इसको रन करूंगा तो मैं कुछ भी नंबर दोबारा दे सकता हूँ, 21.8 and maybe 2.8, it can be this 26.599998. So this is how it looks like. You can change the number every time. This is how scanf is being used. अब अगर आपको scanf समझ में आ गया, it will be easy for you to work with, let's say, area of a circle. I will teach you area of a circle first and then we will go to nth root. So area of a circle का program बनाना है. Now area of a circle कैसे बनेगा? Anyone? Enter the radius. Yes, radius and what else? So एक प्री डिफाइंड वैल्यू होगी हम लोग पाई की, जो मतलब एक असाइन कर देंगे एक वैल्यू को, and then we'll say multiply it like that. Yeah, so what's the formula of circle? Very easy. So pi r square. Yes, so float pi equal to, let's say this one 3.142857, ठीक है। मुझे क्योंकि ये वैल्यू याद है मैंने एज इट इज लिख दिया इसको। इफ यू डिवाइड 22/7 दिस विल बी द आंसर, एंड देन if you want to get the radius from the user, float r, which will be radius, and I want to get the input, so मैं क्या करता हूँ, scanf कर लेता हूँ। scanf में I will get this float as the input from the user, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं printf enter the radius, ठीक है जी। इसको हमने किया, रेडियस हमें मिल जाएगा। then you have to calculate the area, so what I will do is float area equal to pi r square, so it will be pi multiply r, ठीक है जी। now I will print the area of the circle, area, मैं पहले न्यू लाइन कर लेता हूँ क्योंकि वो फिर ऊपर ना ओवरलैप हो जाए। area of the circle is %f, because now I know that my answer is in the variable area, so I am writing area here. This area value which we are calculating at this place, it will take the value at this %f and the answer will be printed, whatever the value of r will be, calculate करेगा वो और output हमें दे देगा। So if I run this now, it is saying me give me the radius, let it be 5. So the answer should be around 78. So the output is area of circle equal to 78.5711. I mean, this is the output, right? So this is easy to implement. And Hanji, yes. Someone. कोड में आपने स्लैश n क्यों लगाया? वो न्यू लाइन के लिए लगाया था। अरे ये उड़ कैसे क्या ये? गिव मी 1 सेकंड। अच्छा ये आ गया। या आप कह रहे हो यहाँ पे स्लैश n क्यों लगाया? अगर मैं ना लगाता तो देखते हैं पहले क्या होगा। लेट्स से मैंने नहीं लगाया उसको, हाँ जी, रेडियस 5 एंटर। अगर मैं ना लगाता तो भी ठीक था, बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट गिविंग मी द आंसर इन द नेक्स्ट लाइन। बट लगाने से क्या हुआ, ये एंटर द रेडियस और एरिया ऑफ द सर्कल के बीच में एक और एम्प्टी स्पेस आ गई थी। फॉर ए सेफ साइड मैंने लगा दिया था कि वो ओवरलैप ना कर जाए। कभी कभी क्या होता है वो 5 के बाद साथ ही शुरू कर देता है without any space or new line. So now if I write this thing, if I give the output as, if I give the input of the radius as 5 now, it will take extra line here as a empty line because I said I want a new line. उसने खाली जगह दे दी बीच में बस। It is for just better presentation, मैंने एक न्यू लाइन एक्स्ट्रा डाल दिया था। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? और कोई डाउट? Quickly. No, sir. Okay.
Let's talk about now, let's say nth root. ठीक है, nth root की बात करते हैं. Can anyone tell me how to calculate the nth root of a number? Let's say I want to do the square root. ठीक है जी, कैसे करेंगे n का स्क्वायर रूट मैथ्स में? It should be something like this. स्क्वायर रूट ऐसे निकालेंगे n की पावर 1/2. Yes, sir. Similarly, sir. similarly, when I say I want nth root, it means that So 1 by on that number. यहाँ पे 1 by n आ जाएगा, है ना? तो let's say number is a, so a raised power 1 by n हो जाएगा. तो this is nth root of a. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I want to make this program nth root of a number. अब यहाँ पे दो चीजें इनपुट होंगी. अगर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे दो चीजें इनपुट करूं. एक तो मैं नंबर पूछूं बंदे से कि तेरा नंबर क्या है, एंड आई ऑल्सो वांट टू गेट दिस इनपुट ऑफ nth root. अब n, ये वाला कैपिटल N क्या है ये भी मैं पूछूंगा. लेट द नंबर बी m, लेट द पावर बी कैपिटल N. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 by n ऐसे करके इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूँ, वेयर आई वांट टू गेट द इनपुट ऑफ m आल्सो एंड दिस n आल्सो. समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Okay, Yes, sir. let's do the coding for this. Coming to the code. Now if I want to do the coding of this thing, nth root of m, ठीक है, nth root of m which is a number, ठीक है. तो मैं सबसे पहले तो पूछूंगा कि भाई तू मेरे को नंबर बता दे कौन सा तेरा, ठीक है. एंड ऑल्सो n भी पूछना है, तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ. तो क्विकली आई विल गेट द स्कैनफ फ्रॉम द पर्सन. मैं क्या करूँगा, %d, %d, दोनों इकट्ठे ले रहा हूँ मैं इस बार, m, n. ठीक है जी. Obviously यहाँ पे m% आएगा because I want to get these two numbers from the user. So how will I calculate the answer? The answer will be as a float, because चलो हम float पे नहीं जाते अभी, int में रखते हैं. और int में आंसर पर यार वो स्क्वायर रूट पे तो पॉइंटों में आएगा आंसर. फ्लोट आंसर, फ्लोट ans इक्वल टू, वन मोर थिंग वी नीड टू डू हियर. सो इफ आई वांट दिस nth रूट, अब मैं उसका कोड तो नहीं करूंगा यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. If we go to the derivation of that thing, so one thing can be done, we can include a library called math.h. ठीक है जी. अब math.h में ना पावर नाम का एक फंक्शन होता है. मैं क्या करूंगा, पावर को कॉल करूंगा, पावर में m, n कर दूंगा, इनफैक्ट n, 1 by n कर दूंगा, बिकॉज आई वांट द 1 by nth पावर ऑफ m. ठीक है. एंड इसमें फ्लोट में आंसर सेव हो जाएगा. लेट्स से मेरा m 100 था और मैंने n को कर दिया 10, तो क्या आएगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. लेट्स सी, मैं स्क्वायर रूट ही कर लेता हूँ. 100 मतलब 100,2 कर दूंगा यहाँ पे. तो 100 रेज़ पर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी 10. ठीक है, 100,2 की मैं इनपुट दूंगा. लेट्स प्रिंट द रिजल्ट, printf %f, because the output is a floating number. Let's So see. अभी हम लोग वो यूजर इनपुट भी तो लेंगे इसमें. ये रहा यूजर इनपुट. सो नहीं, वो जैसे इंटर वैल्यू m, इंटर वैल्यू n, वो हाँ, सब नहीं अब देखो क्या है कि मैंने क्या करा, वो तो देखो सजाने के लिए होता है कि मतलब मैंने बोल दिया बंदे को कि यार तू फिल कर दे. बट इवन इफ आई डोंट राइट दिस थिंग दैट एंटर द वैल्यू ऑफ m एंड n, तब भी मेरा कोड तो चलेगा ही. ठीक है. अगर मैं इस चीज को कमेंट कर दूंगा, पहले मैं कमेंट करके चला के दिखाऊंगा आपको, फिर मैं वो आपका m एंड n करूंगा. मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो इंटीजर लिए m एंड n, एंड देन आई एम डूइंग दिस scanf. मैंने दोनों का इनपुट लेना है इकट्ठा, एंड इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट. मतलब बीच में कॉमा आएगा और तभी वो दो इंटीजर्स को अलग अलग कर पाएगा. ठीक है, मतलब वो अपने आप समझ जाएगा कंपाइलर मेरा दैट आई एम गिविंग दीज टू नंबर्स. लेट्स से 100,2, तो 100 रेज़ पर 1/2 इज इक्वल टू 10. तो आंसर 10 आ जाएगा. इनफैक्ट क्योंकि फ्लोट है वो, तो आउटपुट मेरा वो 10.0000 आएगा आउटपुट. बट देन आई एम गिविंग माई इनपुट एज 100,2. लेट्स रन दिस प्रोग्राम, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं. नाउ इफ आई गिव द इनपुट एज 100,2, वो अपने आप, बिकॉज मैंने ऊपर स्कैनफ में कॉमा डाला था, वो अपने आप उसको अलग अलग कर लेगा दोनों नंबर्स को.
तो इसको रन करेंगे, आंसर इज 1,1.0000। अब ये 100 की पावर 1 बाय, एक सेकेंड, 100 रेज़ पावर 1/2, वो 1 क्यों दे रहा है, देना तो 10 चाहिए। इफ आई कन्वर्ट देम इनटू फ्लोट अगेन, या फिर मैं चलो सबको इंट कर देता हूँ। 100 रेज़ पावर 1/2, 100 का स्क्वायर रूट इज 10, ठीक तो है। 100,2 why is this giving 1 again and again? चलो मैं इसको अलग अलग करके देख लेता हूँ, वैसे तो इसमें कोई पंगा है नहीं, बट स्टिल चलो। If I take them in two different statements, m और n की वैल्यू, पावर ऑफ m मेरा है 10, 100 रेज़ पावर 1/n, which is 1/2। पहले मैं नॉर्मल करके देखता हूँ कि अगर मैं सपोज 2 रेज़ पावर 3 करता हूँ, क्या ये मेरा आंसर ठीक दे रहा है? रूट बाद में देखते हैं। अगर मैं सपोज m की वैल्यू ले लूँ, m is equal to 2, n equal to 3, let's see if it is giving me the answer of 2 raised power 3 as 8। अभी लग जाएगा पता। 2, 3, आंसर इज 8, ये ठीक दे रहा है। 1/n में I will look into this, you can also look into this कि वो 1/n जब वो कर रहा है, it is actually I think converting it into points। अच्छा, मुझे समझ में आ गया क्या पंगा पड़ रहा है। The problem is that when I do 1/n, let's say I did 1/n of that thing, 1/2 किया, तो 1/2 करेंगे तो वो 0.5 आएगा, yes or no? Yes, sir. But then 0.5 को being an integer वो 0 ही रख रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि 100 raised per 0 is equal to 1, तो वहां पे ये पंगा पड़ रहा है। तो let me convert this into float, let's see if the result should be fine। It should be fine now, देख लेते हैं। f है, ये भी f है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आंसर को भी फ्लोट ही रख लेता हूँ, सबको फ्लोट रखते हैं। Okay, so now I am getting I am going to give the value of m equal to 100 and n will be equal to 2, तो 100 का square root should be 10, तो answer should be 10। Now let's see, पहले 100 दिया, फिर 2 दिया, ठीक आ गया। That was the issue, वो क्या कर रहा था कि because I took the n as an integer, तो वो 1/n को 0 कर दे रहा था हर बार, इसलिए आंसर 1 आ रहा था। इज इट फाइन नाउ? हमारा nth 1/n का स्क्वायर रूट वाला हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, nth रूट ऑफ ए नंबर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ। एंड समवन टोल्ड मी दैट हम ये भी लिख देते हैं, तो ठीक है लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये पहले पूछेगा कि भाई दे दो मेरे को नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ m एंड n, लेट इट बी। अब कोई और दे देते हैं, लेट्स से हम 1000 का क्यूब रूट निकालना चाहें, तो 1000 में मेरा m है, n मेरा 3 है, तो आंसर शुड अगेन बी 10, तो इट इज 10.00001, तो मतलब जो भी है, मतलब ठीक है, 1000 का क्यूब रूट इज 10। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क। Sir, how do we know that which library we have to use? देखो, this comes with experience, but because I know that power function is available in the math.h, that's why I included this। जनरली जैसे हम कोई भी मैथ्स का करना चाहें, या जैसे पावर है, या फिर आप स्क्वायर रूट, SQRT का भी एक होता है, SQRT is also one of the function, it is only for square root। तो इन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा that which function is part of which library। Now how many 1 2 3 4 5 6 Sir, 7 your 8 voice is lagging. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, I am saying that how many functions are there in this code। मुझे सारे functions काउंट करके बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, सारे सबका काउंट बताओ मेरे को, टोटल नंबर ऑफ functions in this code।
Sir, 5. 5. With or without repetition? Sir, with repetition. With repetition 5 है. Are you 100% sure? Yes, sir. Sir, 6. Anyone except 5 and 6? एक जना कह रहा है 5 फंक्शन है, एक जना कह रहा है इसमें पूरे प्रोग्राम में 6 फंक्शन है. Anyone having different opinion, you can say now. सर मेन तो एक ही फंक्शन है ना. Sir, 4 without repetition. 4 without repetition. Someone told main तो एक ही फंक्शन है, बट मैंने पूछा कि टोटल कितने फंक्शन है. अब मेन के अंदर भी तो और फंक्शन यूज हो रहे हैं. अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको अभी हाईलाइट करके बताता हूँ इसको. मेन इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई f1. ठीक है जी. नाउ printf is my second function, this is my f2. scanf is my f3. Again I am using scanf second time, so it is f4, fourth function. In this I am using power function, it is f5, fifth function. In this again this is f6 because we are using printf again. So there are total 6 functions that are being used in this single program. फिर वो चाहे आप फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हो, मैंने ये पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं. रेपिटेशन हो रही है, irrespective of that total number of functions are 6. main is a function, printf scanf twice, तो ये 4 plus 1 5 हो गया. power is a function, 6th function. total 6 functions are there. इस पूरे कोड में कोई और आपको कुछ और डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो. फिर इसको विदाउट मैथ्स डॉट एच के मतलब तो कर नहीं सकते ना. देखो करने वाले कर लेते हैं. मैंने एक बार ऐसे किया था. आई मेड वन प्रोग्राम जहाँ पे आई यूज्ड माय ओन कोडिंग विदाउट द यूज ऑफ पावर फंक्शन, बट उस लेवल का अभी आपको नहीं देंगे. बट आई जस्ट वांट टू गिव यू बेसिक आइडिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल you know that 100 का स्क्वायर रूट इज 2, मतलब 100 का स्क्वायर रूट इज 10. yes or no? Similarly you also know, अगर आप ऐसे कर लो कि 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, 2 का इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का इज 16, then 25, then 36, 49, 64, 81, 100. तो सपोज मैं 100 तक के स्क्वायर रूट की बात करूं. अब मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, अगर किसी भी नंबर का, लेट्स से आई वांट टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 50 या फिर 55, चलो 55 कर लेते हैं. आई वांट टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ 55. अब देखो एक तो तरीका है कि आप पावर फंक्शन यूज करो. आप क्या करोगे, 55 कॉमा 1/2 ऐसे कुछ करके आप अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. इससे तो आएगा आपका परफेक्ट आंसर. but for the sake of doing manually, what I do for my aptitude, मैंने ये प्रोग्राम बनाया था just to improve my aptitude, because for placements also it is required, right, aptitude. Now in that case you will not be given a calculator. अगर आपको ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 55 आ गया in your placements, तो आपको वहाँ पे वो तो नहीं मिलेगा कैलकुलेटर. what I do personally is, मुझे पता है कि 7 का स्क्वायर इज 49, मुझे पता है 8 का स्क्वायर इज 64, गैप इज 15. सो व्हाट आई डू इज आई डिवाइड दिस 15 by 10 एंड इट विल बी 1.5 फॉर ईच पॉइंट. अगर मैं अब 7.1 का स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 49 प्लस 1.5, तो 50.5 का जो स्क्वायर रूट होगा इट विल बी 7.1. सिमिलरली 52 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7.2. तो सिमिलरली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैलकुलेटेड दिस के मेरा जो 55 का स्क्वायर रूट है वो 7.4 होना चाहिए. विद माय रफ आइडिया आई वुड से दैट 7.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर 4 बार 1.5 को ऐड किया तो वो 6 होगा एंड 49 प्लस 6 इज 55. अब ये सी प्रोग्रामिंग का पार्ट तो नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग अब मैं यहाँ पे आपको ये प्रूव भी करके दिखाता हूँ कि मेरा आंसर कितना पास है करेक्ट आंसर के. सो इफ आई राइट कि मुझे 55 का स्क्वायर रूट करना है, मैंने बोला 7.4 है, ठीक है. नाउ इफ आई रन दिस कोड एंड आई गिव द इनपुट एज 55 and because I want a square root,
तो मैं करूंगा 2 आंसर मैंने बोला 7.4 है तो आउटपुट इज कमिंग टू बी 7.41 फॉर एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा आंसर है 7.41 ठीक है तो मतलब मैं 7.4 पे टिक करता अगर मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो बिकॉज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग और मतलब वो गैप वाली थ्योरी बताई है मैंने तो मैंने उस गैप वाली थ्योरी का अपने एंड पे एक बार प्रोग्राम खुद बनाया था दैट आई यूज दिस लॉजिक दैट आई विल कैलकुलेट द नियरेस्ट नंबर्स उसकी जो रेंज होगी उसको डिवाइड बाय 10 करके मैंने इसे डिवाइड करके मतलब ये पूरा लॉजिक मैंने अपना खुद का बना दिया था एंड आई मेड दिस थ्योरी के भाई मेरा ऐसे करके आंसर आ रहा है एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर योर लॉग वैल्यूज ऑल्सो अगर किसी का लॉग निकालना है तो मैं क्या करता हूँ अगर लेट्स से मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा यहाँ पे यूज करना है और लॉग का फंक्शन मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा कॉल करना है तो मैंने उसका भी एक शॉर्टकट अपने एंड पे बनाया हुआ है आई नो पर्सनली दैट log 1 इज इक्वल टू 0 आई नो पर्सनली दैट log 10 इज इक्वल टू 1 और उसमें से 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है इनका मैंने याद किया हुआ है दैट इट इज 0.3 0.48 0.7 एंड 0.85 तो मैं क्या करता हूँ तो पर्सनली if I want to get a log value of 85 so what I would do is I will convert this thing 85 into factors वो होगा 17 into 5 है ना तो 17 into 5 को मैं log में लिख सकता हूँ log 17 plus log 5 and again now log 17 can be calculated by my theory कि भाई log 10 का होता है 1 log 20 का क्या होता है it is equal to 1.3 why because log 20 equal to log 10 into 2 अब 10 into 2 को लिख सकते हो log 10 प्लस log 2 होता है 0.3 तो 1.3 तो इसका मतलब log 10 और log 20 में बीच में गैप है 0.3 का तो मैंने क्या किया पर्सनली व्हाट आई डू इज आई कन्वर्ट दिस 0.03 एज ए स्टेप साइज ऑफ 1 तो 0.03 into 7 is 1.21 आ जाएगा यहाँ पे log 17 is 1.21 प्लस log 5 का वैल्यू आई नो इज 0.7 तो 1.91 is the output if you calculate the log of 85 मतलब अब ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया आप चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू मी log of 85 is equal to 1.91 I just showed you the derivation आप अपने एंड पे चेक कर लेना it should be very very near तो अगर आपको इनबिल्ट वाला नहीं भी आता अगर आपको कोई चैलेंज दे दे कि ये आप करके दिखाओ तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ए टेक्निक कि उसके सबसे पास का नंबर ढूंढो उसकी लिमिट ढूंढो उसकी रेंज देखो फिर उसको बांट दो ठीक है तो मतलब दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट इन एप्टीट्यूड कोई और डाउट है तो पूछो हाँ जी एनी अदर डाउट इफ यू हैव नो डाउट वी विल मूव टू सिंपल इंटरेस्ट ठीक है सिंपल इंटरेस्ट का कोड कर लेते हैं फटाफट से सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल PRT by 100 right so SI equal to PRT by 100 अब इसका मैं कोड वैसे बना तो रहा हूँ मेरा मन तो नहीं है मैं एक काम करता हूँ मैं सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही करवाता हूँ आपको डायरेक्टली ठीक है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कोड है सिंपल इंटरेस्ट नहीं बनाऊंगा बहुत आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं एनीवन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी जल्दी हाँ जी what is the formula for compound interest you have studied in 10th class and 11th also 1 plus r by n की पावर n t r by 100 raised to the power t यही होता है p into 1 plus r by 100 raised per t के होल रेस्ट पर टी होता है ये शायद होल रेस्ट पर टी होता है यही होता है फॉर्मूला CI का 1 plus r by 100 raised per t कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यही तो होता है ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे r by n रेस्ट पर टी ये बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लेक्स सा कर दिया है थोड़ा सिंप्लीफाई वाला देखते हैं 1 plus r अब मैं तो ईयरली वाले कर रहा हूँ तो ईयरली वाले में यहाँ पे ना ये पर ईयर वाले का है
तो ये हम पर ईयर का 1 ही लेके चलेंगे, तो 1 + R इंटरेस्ट रेट। अब ये पॉइंट्स में अगर हम इंटरेस्ट रेट डालेंगे, उसकी बजाय हम क्या करेंगे कि लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, तो हम 5/100 लिख देंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव रिटन R/100, तो दिस इज इंटरेस्ट रेट ओनली, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन से रेस पर NT। अब NT इनका मतलब तो यही है कि नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड पर ईयर। तो मैं तो सिर्फ एक ही बार करूंगा पर ईयर, तो मेरा N 1 ही है, तो रेस पर T, तो P × 1 + R रेस पर T, तो मेरा ठीक है शायद, हाँ 1 P तो अलग है, बाकी सबका रेस पर T है, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल फार्मूला फॉर P 1 + R/100 रेस पर T। दिस इज द फार्मूला फॉर CI। नाउ इफ आई वांट टू मेक दिस थिंग कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, व्हाट आई विल डू इज क्विकली आई विल गेट द वैल्यूज। मुझे P रखना है इंटीजर, ठीक है, वैल्यू 10,000 20,000 कुछ दे देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी इंटीजर, ठीक है, एंड T टाइम कैन ऑल्सो बी इंटीजर। बट नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द CI, दैट CI हैज टू बी फ्लोट, ठीक है। मैं सबको फ्लोट ही रख लेता हूँ, ऐसे फिर बाद में वो उसकी रेंज का इशू हो जाता है, ऐसे राउंड ऑफ ना कर दे वो किसी को। तो मैं CI को भी फ्लोट ही रखता हूँ। नाउ हाउ विल आई डू इट, एनीवन क्विकली, व्हाट शुड बी द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर? जल्दी से बताओ स्कैनफ में क्या क्या आएगा। प्रिंसिपल होना चाहिए। हाँ जी, PRT तीनों की वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So I will do %f, comma %f, comma %f. I'm going to take all the three values of PRT from the user. So P will come first, then R will come, then T will come. ठीक है, PRT हो गया जी। उसके बाद जब हमने तीनों को इनपुट करवा लिया, then it's only a matter of calculation. My CI will be equal to P into, now because I want to use a power function here, right? So I have to use a power क्यों? क्योंकि मुझे रेस पर T करना था, तो रेस पर T के लिए मैं कॉमा T पहले ही कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 + R/100 लिखना है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 1 + R/100। so whatever the value of R is there, divided by 100 and then add it to 1, get it raised by T, उसको P से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। एंड नाउ इफ आई printf, the output is the compound interest is %f, CI। इस कोड में कोई कमी हो तो बता दो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत करा है मैंने, you can intervene and you can tell me if there is something that is wrong. No, sir. Okay, running it. So let's say my principal is 100, rate is 10% and time let it be 2 years, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद का कितना बन रहा है। सो द कैलकुलेशन गिव्स मी द आंसर ऑफ 121। इजी था, इसको मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ 121 कैसे आया। एक्चुअली आई थिंक ये अमाउंट का फॉर्मूला बन चुका है। This was not the formula of CI, this is the actually formula of amount in this case. So if I want to calculate CI, I have to do this thing, minus of P. So interest तो तभी आएगा अगर हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे उसमें से। So this is the actual formula. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P into, yeah, you can calculate this thing and you can minus this P, क्योंकि 121 इंटरेस्ट कैसे आ सकता है 100 रुपए के ऊपर 2 साल में, 21 रुपीज ही होगा। सो या दैट्स द थिंग, you can calculate this thing. This is the formula of amount is equal to P into 1 + R upon 100 is by T. You have to subtract the principal amount from it and then the final value of CI will be calculated. Now if I do the calculation 100, 10 and 2,
द आउटपुट विल बी 21 रुपीज। सो मैं इसको अभी प्रूव करता हूँ ये कैसे आया 21। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स दैट whatever the interest of the first year is, it will be added as a principal amount for the second year। ठीक है, तो अगर 100 रुपये है उसके ऊपर हमने 10% का लगाया, तो PRT/100 अगर लगाएंगे हम, PRT/100 लगाएंगे, तो दिस इज माई इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, हर साल आप सिंपल इंटरेस्ट लगाते जाओगे CI में। बस आप क्या कर रहे हो कि जो मेरा इंटरेस्ट आया है आप P+SI यूज करोगे एज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो P+SI into 10 into 1/100, this is the formula for simple interest of second year in case you are calculating CI। so ये compound interest का formula actually, compound interest for the second year can be calculated like this। so 110 into 100 into 1/100, तो ये आप कर लोगे, तो second year का interest is 11। so what I'm trying to say is when you are calculating compound interest of first year is 10 rupees in this case, for the second year it is 11 rupees for the second year, but the total compound interest is coming out to be 21। so that's why I have subtracted the principal amount from the total amount। this was the amount formula minus the principal gives me the compound interest of 2 years। हाँ जी, there is one very famous thing these days, PPF नाम की एक चीज होती है। can anyone tell me what is PPF? हाँ जी, PPF क्या होता है? It is public provident fund। all the people in this country, हम सब जिनकी सैलरी आती है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको एक ऑप्शन देती है गवर्नमेंट दैट यू कैन पुट योर मनी इन द PPF। PPF क्या है? एक प्रोविडेंट फंड है जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है सबसे और उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है हमें, बट गवर्नमेंट कैन यूज दैट मनी ऑन इट्स एंड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इट गिव्स अस द ऑप्शन के 15 साल के लिए आप अपना PPF अकाउंट खुलवाओ, और जो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें बेस्ट थिंग इज दैट यू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 15 years इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। तो लॉट्स ऑफ इंडियंस, लॉट्स ऑफ अस पीपल आर यूजिंग PPF, सबके अकाउंट बने हुए हैं, एंड देयर इज दिस थिंग दीज डेज इट इज अराउंड 7% जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो हम एक काम करते हैं, हम 15 साल का चेक करते हैं कि 15 साल अगर लगातार मैं 1.5 लाख की एक लिमिट होती है इंडिया में, 1.5 लाख का लिमिट है पर एनम। तो हम एज्यूम करते हैं दैट माई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल। तो हम एक बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि बंदे ने 2 अप्रैल को 15 साल के लिए लगातार 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाला, तो उसको 15-16 साल के बाद जब वो अमाउंट मैच्योर होगा इंक्लूडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा एंड में, कि उसने 1.5 लाख डाला, 15 साल के लिए डाला, तो उसने टोटल 22.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे अपने 15 ईयर्स के लिए। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट विल गिव एज द फाइनल मैच्योर्ड अमाउंट जो उसको मिलेगा, एंड दैट अमाउंट विल बी नॉन टैक्सेबल। ठीक है, बेस्ट थिंग इज इट इज नॉन टैक्सेबल, क्योंकि आपने अपना पैसा गवर्नमेंट को पहले ही दे दिया था कि यार तुम इन्वेस्ट करो, जो मर्जी करो, देश की तरक्की करवाओ, बट मेरे को बस इतना कर देना कि जब आप वापस करोगे पैसा फाइनल, उसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा मैं, टैक्स ऑलरेडी मैं अपना भर रहा हूँ। इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज सेड के जो मेरा ये 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है PPF की, ये 80C फॉर्म के अंडर आती है, फॉर्म 80C ऑफ इनकम टैक्स, तो ये मेरा 1.5 लाख नॉन टैक्सेबल होता है। जब आप इसको इनकम टैक्स फिल करते हो ना अपना, आप अपने साल की सैलरी में से 1.5 लाख वहां पे शो कर सकते हो कि मेरा 1.5 लाख कम करके टैक्स लगाओ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू मनी फॉर यू टू इन्वेस्ट। सो लेट्स डू दिस थिंग, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि मेरा अगर मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैं इसको अमाउंट का फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। I want to calculate the amount that I will get after 15 years of maturity। मेरे PPF में अगर मैं 1.5 लाख रुपए डालूं हर साल, ठीक है, तो if I say मेरा अमाउंट का भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। In fact this is amount only for CI। what I will do is I will write amount minus P, ठीक है जी, और यहाँ से मुझे माइनस P हटाना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि मुझे मेरा 15 साल का कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे CI से कुछ करवाना नहीं है, मुझे सिर्फ अमाउंट ही प्रिंट करवाना है, द अमाउंट ऑफ
15 years of PPS maturity amount is, छोटा कर लेते हैं इसको, it is amount, तो हम करते हैं कि 15 साल के लिए बंदे ने 1.5 लाख रुपए डाला अपने अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में, एंड इन दी एंड 15 साल में उसको कितना पैसा मिलेगा, उसने इन्वेस्ट किया टोटल 22.5 लाख, अगर वो 1.5 लाख डाल रहा हर साल। तो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैं इसमें देता हूँ क्या कह रहा है ये अमाउंट, अच्छा मैंने ऊपर अमाउंट नहीं लिया ना, ओके रनिंग दिस नाउ। मैंने प्रिंसिपल दिया 1.5 लाख रुपए हर साल कंसिस्टेंटली, मेरा रेट होगा, ये एक्चुअली हर साल वाला नहीं, ये ना क्या करेगा कि 1.5 लाख इनिशियली ले लेगा और 1.5 लाख के ऊपर ही करेगा, वो 22 लाख तक तो वो जाएगा ही नहीं, वो 1.5 लाख एक कंसिस्टेंट अमाउंट रखेगा अपने एंड पे, और इसके ऊपर वो 15 साल का, मतलब दिस प्रोग्राम हैज बिकम कि भाई तुमने 1.5 लाख एक बार डाल दिया, 15 साल बाद उसका कितना अमाउंट होगा, तो कंपाउंडिंग का फर्क देखो, कंपाउंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% डाल देते हैं एंड टाइम हम देते हैं 15 साल, कि अगर 15 साल के लिए आपका 1.5 लाख रुपया अकाउंट में पड़ा रहे और 7% इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन द अमाउंट शुड बी 4,13,000। ठीक है, तो मतलब वो काफी बढ़ गया। ये मैच्योरिटी अमाउंट पीपीएफ का तो नहीं है, बट दिस इज द अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स। अगर आप इनिशियली 1.5 लाख डालते हो अपने अकाउंट में, तो वो 15 साल के बाद सीआई के थ्रू इतना बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज 15 ईयर्स का इतना, बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट, ये था मेरा सीआई अमाउंट, इफ आई वांट टू कंपेयर इट विद द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, व्हाट आई विल डू इज, बहुत सिंपल है, मैं एक एसआई अमाउंट लूँगा, मैं करूँगा पीआरटी बाय 100, तो उसमें हर साल वो फिर हर बार मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा। चलो वैसे हम सिंपल सिर्फ एक इंटरेस्ट की ही बात करते हैं कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, हम सिर्फ यहाँ पे अब इंटरेस्ट की ही बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला विल बी माइनस पी अगेन, तो मैं 1.5 लाख माइनस कर दूंगा इसमें से। तो हम सिर्फ ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मैं 15 साल के लिए 7% पे सिंपल इंटरेस्ट पे डाल रहा हूँ पैसा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल रहा हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू सी आई माइनस एस आई। तो मैं क्या करता हूँ, द डिफरेंस इज, बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट सी आई विल बी मोर, तो सी आई माइनस एस आई कर रहा हूँ मैं, my CI and SI। ठीक है, यहाँ पे SI भी करना पड़ेगा। Now what I'm going to do is I want to compare that what is the difference between my compound interest that I will get after 15 years versus my simple interest। तो उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि मैं अगर 1.5 लाख रुपए अपना डाल रहा हूँ आज और 15 साल के बाद निकलवाऊंगा, तो मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट बेटर है या कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर है। ठीक है, तो मैं इसको देखूंगा, तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का। दिस इज ए वेरी बिग डिफरेंस, सो ऑलवेज कंपाउंडिंग इज बेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब एक बड़ा सिंपल सा यहाँ पे कंपैरिजन भी होगा कि कौन से वाला बेटर है, अगर आपने कल को अपना पैसा बैंक में डालना है या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके पास कंपाउंडिंग का ऑप्शन है या एसआई का ऑप्शन है, ऑलवेज गो विद द कंपाउंडिंग बिकॉज इट इज गिविंग मी मोर मनी। ठीक है जी, कोई और डाउट है तो बताओ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉट्स ऑफ इट। आप ये वाली असाइनमेंट कर सकते हो बाकी अब अपने एंड पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दैट आई वांटेड टू टीच यू टुडे। No, sir, no doubt. ओके, थैंक यू। 1 second।